Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are watching the videos regularly and we are revising some of the grammar portions. As you know that since past two videos we are revising nouns. And in today's video, I'm going to discuss with you common noun and proper noun. I have already started this topic in the previous video and have told you what common noun and proper nouns are actually. Let me revise that. Common noun is the word for person, place or thing. It is the name, it is the word of person, place or thing. And the proper noun is the name for specific person, place or thing. Okay? Common noun is the name of person, place or thing. Proper noun is the name of specific person, place or thing. I will explain you this thing with some example so that it will be clear to you. I have already given you some examples in the previous video. But that examples I have given orally. Today I will write those examples. Okay. Children, let me write few things for you. Here I am writing common noun. Okay. Common noun. And here I will write proper noun. Children, as I have told you, common noun is the word or the name for a person, place, thing, animal. And here it is for the specific person, place, thing or animal. When I say here, I am writing it girl. Girl is a common noun. It can be any girl. But when I write Tanya, it means this is a proper name. Proper name of a particular girl. All girls can't be Tanya. सारी लड़कियों को हम तान्या नहीं बोलते हैं, पर सारी लड़कियों को हम लड़कियां बोलते हैं. All girls are called girls, but all girls can't be called Tanya. Tanya is the name of a particular girl. So it is a proper name. Children, proper name always starts with capital letter. We always capitalize प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, लेकिन कॉमन नाउन को हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखते हैं. व्हेन आई से स्कूल, ऑल स्कूल्स आर कॉल्ड स्कूल. जहां भी बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, वो सारे स्कूल को हम स्कूल ही बोलते हैं. बट व्हेन वी से आर्मी पब्लिक स्कूल, it is a proper name. Why? Because all schools are not army public school. सारे स्कूल army public school नहीं है. It is the name of a particular school, a specific school. So army public school, I am writing it with capital letter. It is a proper name. Okay. When I say university, जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं, तब यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं. All universities are called university, महाविद्यालय जिसको बोलते हैं. But when I say Banaras Hindu University, BHU, when I say BANARAS, Banaras Hindu, it is a proper noun. It's the name of a specific university. जिसे आप शॉर्ट में BHU के नाम से आते हैं ना, कि BHU जा रहे हैं बोलते हैं ना लोग. This is BHU, Banaras Hindu University. It's a name of a specific university and it will be written with capital letters. Okay, proper nouns are written with capital letters. Then bank. All banks are called bank. जहाँ भी आप मनी डिपॉजिट करते हो, those all banks are banks. But when I say Bank of Baroda or State Bank of India या Union Bank, it means I'm talking about particular bank. STAT, State
Bank of India. It's a name of a particular bank. It's a proper noun. All banks are not State Bank of India. Okay? या अगर हम करें PNB, Punjab National Bank, it means it's a name of a particular bank. All banks are not Punjab National Bank. It's a specific name given to a particular type of bank, particular bank. Now let's take airport. All airports are airport, common noun. It's common name for all airports. जितने भी दुनिया में एयरपोर्ट है उनको हम एयरपोर्ट ही कहते हैं. इट्स अ कॉमन नाउन. बट व्हेन आई से बाबतपुर एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक एयरपोर्ट. हम क्योंकि वाराणसी के ही कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, तो आई विल राइट हियर बाबतपुर एयरपोर्ट. Now this is the name of a specific airport. All airports are not बाबतपुर एयरपोर्ट. कोई पर्टिकुलर एयरपोर्ट का नाम बाबतपुर एयरपोर्ट है, तो इसलिए ये क्या हो गया, स्पेसिफिक नेम हो गया, प्रॉपर नेम हो गया. आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन किस तरह से अलग अलग होते हैं. व्हेन यू से टीचर, टीचर इज अ कॉमन नेम. ऑल टीचर्स आर कॉल्ड टीचर. जितने भी दुनिया में टीचर्स हैं, दे आर कॉल्ड टीचर. इट्स अ कॉमन नेम. इट्स अ नेम ऑफ अ जॉब. ये एक नौकरी का नाम है टीचर. टीचर इज अ नेम ऑफ अ जॉब, कॉमन नेम. बट व्हेन यू से मिसेस सुनीता, तो ये एक पर्टिकुलर टीचर का नाम है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक नेम हो गया. ऑल टीचर्स आर नॉट मिसेस सुनीता. ये किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम है. ठीक है. व्हेन यू से डॉक्टर, इट इज अ कॉमन नेम. डॉक्टर इज अ कॉमन नेम. इट्स अ प्रोफेशन. और सारे डॉक्टर्स को हम डॉक्टर ही बोलते हैं. बट व्हेन वी से डॉक्टर BN सिंह या कुछ भी ऐसा नाम लिख लेते हैं, फिर आई एम नॉट राइटिंग नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर डॉक्टर. ये अपने मन से मैं किसी का भी नाम लिख दे रही हूँ. मे बी इस नाम के कोई डॉक्टर होंगे या नहीं होंगे. डॉक्टर BN सिंह. नाउ दिस इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर डॉक्टर, ए स्पेसिफिक डॉक्टर. ऑल डॉक्टर्स आर नॉट BN सिंह. ठीक है. तो ये जो डॉक्टर प्रोफेशन है, सारे डॉक्टर्स को डॉक्टर कहते हैं, लेकिन सारे डॉक्टर्स BN सिंह नहीं है. तो ये स्पेसिफिक नाम है, किसी पर्टिकुलर डॉक्टर का ये नाम है. अच्छा, अब हम क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं. हम लेते हैं एग्जाम्पल रेस्टोरेंट का. ठीक है. रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट भी बोलते हैं, या रेस्तरां बोलते हैं, रेस्टोरेंट बोलते हैं. एक्चुअली इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है रेस्टोरेंट या रेस्तरां. ये वर्ड इंडियन वर्ड नहीं है, इटालियन वर्ड है. रेस्तरां या रेस्टोरेंट. ऑल रेस्टोरेंट्स आर कॉल्ड रेस्टोरेंट. सारे रेस्टोरेंट को हम रेस्टोरेंट ही बोलते हैं. बट जब हम किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का नाम लेते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ किसी भी एक रेस्टोरेंट का, नॉट एडवर्टाइजिंग किसी रेस्टोरेंट का मैं नाम को एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ. सिंपली आई एम राइटिंग नेम मीन गार्डन. ठीक है. मीन गार्डन या क्रिस्टल बोल या राहिल, साहिल, जो भी आप रेस्टोरेंट का नाम जानते होंगे. ठीक है. तो ये एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का नाम है. ऑल रेस्टोरेंट्स आर नॉट मीन गार्डन, पर सारे रेस्टोरेंट हैं. So restaurant is a common name, but Ming Garden is a particular name. It's a name of a particular restaurant. ठीक है? Clear? भी और एग्जाम्पल ले लेते हैं. आपको मैं और एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी. Now, park. All parks are called park. सारे पार्क जो है वो पार्क ही कहलाते हैं. इट्स अ कॉमन नेम गिवन टू पार्क. ठीक है. लेकिन जब मैं बोलूंगी नेहरू पार्क,
ये आपके स्कूल के बगल में है ना, स्कूल के पास में नेहरू पार्क। तो नेहरू पार्क इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पार्क। सारे पार्क को हम नेहरू पार्क नहीं बोलते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्क का नाम नेहरू पार्क है। सो इट इज अ प्रॉपर नेम। व्हेन यू से मॉल, ऑल मॉल्स आर कॉल्ड मॉल। सारे मॉल को मॉल कहते हैं, है ना। लेकिन जब आप बोलोगे JHV मॉल, इट्स द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मॉल, सो इट इज अ प्रॉपर नेम। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉपर नेम हो गया। मॉल्स आर मॉल्स, सारे मॉल्स जो है वो मॉल्स हैं। लेकिन जब आपने JHV मॉल बोला तो यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मॉल। या आप IP मॉल बोल रहे हो या PDR मॉल बोल रहे हो, तो आप पर्टिकुलर मॉल का नाम बोल रहे हो। बिकॉज ऑल मॉल्स आर नॉट JHV मॉल, ऑल मॉल्स आर नॉट PDR मॉल, ऑल मॉल्स आर नॉट IP मॉल। ठीक है, चलिए और हम क्या एग्जाम्पल है, मंथ ले लेते हैं। ऑल मंथ्स आर कॉल्ड मंथ, चाहे जो भी मंथ हो उसे हम मंथ ही बोलते हैं, इट्स अ कॉमन नेम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर मंथ, जैसे अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर, जैसे OCTOBER, इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ अक्टूबर। सो हम इसको कैपिटल से लिख रहे हैं। एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट सारे जो प्रॉपर नेम है उसको मैं कैपिटल से ही लिख रही हूँ, बिकॉज ऑल प्रॉपर नाउन्स दे बिगिन विथ कैपिटल लेटर। ओके, उनको कैपिटल लेटर से ही हम लिखते हैं। किसी का भी हम नाम लिखते हैं तो हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये मंथ मतलब सारे मंथ। बट व्हेन आई टॉक अबाउट अक्टूबर, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ। ठीक है, डे, ऑल डेज अ डे। बट स्पेसिफिक हम किसी डे की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे मान लो लिख दिया यहाँ पर वेडनेसडे। तो वेडनेसडे इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर डे, दैट्स व्हाई इट विल बी रिटन विद capital letter. Children, here I would like to mention one thing. Please keep this in mind. जो सीजन्स के नाम होते हैं वो हम कैपिटल से नहीं लिखते हैं। दे आर कॉमन सीजन्स फॉर सीजन्स लाइक समर, विंटर, स्प्रिंग। वी डू नॉट राइट देम विद कैपिटल लेटर। सीजन्स के नाम को हम स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं। दे आर ट्रीटेड एज कॉमन, उसको कॉमन नाउन की तरह ही हम लिखते हैं। ठीक है, सीजन्स के नाम को हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्री। ऑल कंट्रीज आर कॉल्ड कंट्री। सभी कंट्री को हम कंट्री ही बोलते हैं। देश तो सारे देश हैं, ठीक है। बट व्हेन वी से इंडिया, we are talking about particular country. India is the name of a particular country. All countries are not India. दुनिया के सारे देश जो है वो इंडिया नहीं है। India is the name of a particular country. When you say Pakistan और बांग्लादेश और चाइना, नेपाल, रशिया, चाइना, ये सारे जो कंट्रीज के आप नाम बोल रहे हो, तो वो सारे अलग अलग कंट्रीज है। नेम गिवन टू पर्टिकुलर कंट्री, दे आर ऑल प्रॉपर नाउन. India is the name of a particular country. Okay? City. It's a common name for all the cities. सारे शहर को, सारे सिटी को हम सिटी ही कहते हैं. It's a common name for a place. It's a common name given to a place, city. But when we say Varanasi या बनारस, तो इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी. दुनिया के सारे शहर को हम वाराणसी नहीं बोलते हैं, बट दुनिया के सारे शहर को हम सिटी बोलते हैं. सिटी इज द नेम गिवन टू प्लेस, अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्लेस. हमने एक प्लेस को, हमने कुछ प्लेसेस को सिटी नाम दिया है जो विलेज से थोड़े डिफरेंट है, तो वो हम हो गए सिटी. लेकिन सारे शहर वाराणसी नहीं है, तो
वाराणसी एक पर्टिकुलर शहर का नाम है, इट्स अ स्पेसिफिक नेम, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन. Children, I'm giving you example from a day-to-day life only. जो हम डेली चीजें यूज करते हैं, मैं उसी में से आपको ये सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जिनसे आप रिलेट करते हो. ठीक है, आप ये शहरों के या पार्क के नाम या मॉल के नाम मैंने वो चुने हैं जो आपने सुन रखे होंगे, जो आप जिनसे आप फेमिलियर होगी. इसीलिए मैं वो शहर का नाम भी मैं अलग नहीं ले रही हूँ. वाराणसी ही लिखा है, मैं चाहती थी कोई दूसरा शहर लिख सकती थी, लेकिन इसलिए लिखा है क्योंकि आप इससे फेमिलियर हो. कुछ लोग जो दूसरे शहर को बिलोंग करते हैं, मे बी स्टेइंग इन वाराणसी, जैसे गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ में से लोग होंगे, तो वो उनका पर्टिकुलर शहर है. ऑल सिटीज आर नॉट गोरखपुर, ऑल सिटीज आर नॉट गाजीपुर, ऑल सिटीज आर नॉट जौनपुर. वो सब अलग अलग शहर का नाम है. ठीक है. अब न्यूज़पेपर इज अ कॉमन नेम गिवन टू थिंग. कोई ऐसी चीज है जिसको हम न्यूज़पेपर बोलते हैं, उसमें हम न्यूज पढ़ते हैं. ठीक है, इट इज अ कॉमन नेम. बट व्हेन यू से दैनिक जागरण, नाउ आई एम राइटिंग दैनिक जागरण बिकॉज इट्स द मोस्ट कॉमन पेपर दैट कम्स एट एवरीबडीज होम, या अमर उजाला. ठीक है, यहाँ पे मैं दैनिक जागरण लिख लेती हूँ. It's a name of a particular newspaper. All newspapers are not दैनिक जागरण, है ना, लेकिन सारे न्यूज़पेपर्स को हम न्यूज़पेपर ही बोलते हैं. So newspaper is a common name for newspaper, just for the paper that we read for news. But दैनिक जागरण is the name of a particular newspaper, so it is written with capital letter. अमर उजाला अगर मैं लिखूंगी तो कैपिटल लेटर से लिखूंगी. अमर उजाला इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर newspaper. Hindustan is a name of a particular newspaper. Times of India is a name of a particular newspaper. ठीक है, पर all newspapers are called newspaper. ठीक. Next, mountain. Mountain. All mountains are called mountain. जितने भी दुनिया में माउंटेन होंगे उनको माउंटेन ही बोलते हैं. इट इज ए कॉमन नेम गिवन टू अ लैंड फॉर्म. एक ऐसा लैंड फॉर्म है जो ऊंचा सा होता है, उसको हमने एक नाम दिया है माउंटेन. लेकिन प्रॉपर नाम कब होगा? जब हम बोलेंगे किसी माउंटेन का नाम बोलेंगे. जैसे मैंने बोला, मान लो अरावली बोला या एवरेस्ट बोला. ठीक है, एवरेस्ट, ये मसाले वाला एवरेस्ट में, माउंटेन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट. तो एवरेस्ट इज अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर माउंटेन. या अरावली, ये एक पर्टिकुलर माउंटेन रेंज का या माउंटेन का नाम है. ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. मैं आपको मैं कोशिश कर रही हूँ आपको हर फील्ड से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूं. तो माउंटेन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया. अभी और एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कॉमन और प्रॉपर नाउन का बिल्कुल क्लियर हो जाए. चलिए, माउंटेन हो गया. अब हम क्या लेते हैं? लैंग्वेज. चलिए, ऑल लैंग्वेजेस आर कॉल्ड लैंग्वेज, जिससे हम अपने बातों को बता सकते हैं, लिख कर या बोलकर बताते हैं अपने फीलिंग्स को. दैट इज लैंग्वेज. ऑल लैंग्वेजेस आर कॉल्ड language. But when we say Hindi, it is the name of a particular language. दुनिया की सारी लैंग्वेज को हम हिंदी नहीं बोलते हैं. It's a name given to a particular language. Okay? State. All states are called state. सारे स्टेट को हम स्टेट ही बोलते हैं. पर जब हम किसी स्पेसिफिक स्टेट का हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ बोली उत्तर प्रदेश. ना उत्तर प्रदेश इज द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर स्टेट. ये सारे स्टेट्स को उत्तर प्रदेश नहीं बोलते हैं, है ना. इट्स अ नेम
गिवन टू अ पर्टिकुलर स्टेट। एक पर्टिकुलर स्टेट को हमने उत्तर प्रदेश नाम दिया है, बट ऑल स्टेट्स आर कॉल्ड स्टेट। ठीक है। मिलिट्री, मिलिट्री इज अ कॉमन नेम गिवन टू फोर्स, मिलिट्री बोलते हैं ना। लेकिन जब हम बोलते हैं आर्मी या एयरफोर्स या नेवी, देन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो ये स्पेसिफिक हो गया, ये मिलिट्री बोलने से ये कॉमन हो गया। ठीक है। प्लैनेट, ऑल प्लैनेट्स आर कॉल्ड प्लैनेट। सारे जितने भी प्लैनेट हैं वो सबको हम प्लैनेट बोलते हैं। ऑल 8 प्लैनेट्स आर कॉल्ड प्लैनेट। बट व्हेन वी से जुपिटर, अर्थ तो हमेशा ही बोलते हैं, इट इज अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर प्लैनेट। ऑल प्लैनेट्स आर नॉट कॉल्ड प्लैनेट। सारे प्लैनेट, ऑल प्लैनेट्स आर नॉट कॉल्ड जुपिटर। सारे प्लैनेट को हम जुपिटर नहीं बोलते हैं। जुपिटर एक पर्टिकुलर प्लैनेट का नाम है। ठीक है, इसलिए ये कैपिटल में होगा। चलिए अब लेते हैं स्मार्टफोन। ऑल स्मार्टफोन्स आर कॉल्ड स्मार्टफोन। सारे स्मार्टफोन को हम स्मार्टफोन ही बोलते हैं, जिसमें एंड्रॉइड फोन्स जो होते हैं। बट अगर मैं यहां लिखती हूं सैमसंग, तो ये एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम है। सारे स्मार्टफोन सैमसंग ब्रांड के नहीं हैं, बट ऑल फोन्स आर स्मार्टफोन। जो एंड्रॉइड फोन है वो स्मार्टफोन है, बट सैमसंग इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड। तो ये कैपिटल से होगा। ठीक है। लैपटॉप, ऑल लैपटॉप्स आर कॉल्ड लैपटॉप। सारे लैपटॉप को हम लैपटॉप ही बोलते हैं। पर जब अगर हम किसी पर्टिकुलर का नाम लिख लेते हैं डेल, तो ये एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम हो गया। मतलब सारे लैपटॉप्स डेल नहीं है। ठीक है, लेकिन सारे लैपटॉप्स को हम लैपटॉप कहते हैं। तो इट्स अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर गैजेट, बट ये डेल एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम हो गया। ठीक है। तो ये भी हो गया आपका प्रॉपर नाउन। आई होप मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए है ना, काफी सारा। अब आपका ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया होगा, है ना। अब चलिए हम कुछ और इधर बता देते हैं जो हम डेली यूज करते हैं, उसमें से ले लेते हैं। टूथपेस्ट, जितने भी पेस्ट है जिससे आप दांत साफ करते हो, दैट आर कॉल्ड टूथपेस्ट। सब टूथपेस्ट टूथपेस्ट ही कहलाते हैं। बट व्हेन यू से कोलगेट या पेप्सोडेंट या दंत कांति, चलिए हम दंत कांति लिख देते हैं। ठीक है, DANTKANTI, दंत कांति। ये पर्टिकुलर ब्रांड का नाम हो गया। सारे टूथपेस्ट दंत कांति नहीं है ना, पर सारे टूथपेस्ट टूथपेस्ट है। इट्स अ कॉमन नेम गिवन टू अ पेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग टीथ, बट दिस इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट। व्हेन यू से शैम्पू, सारे शैम्पू को हम शैम्पू ही कहते हैं। सारे शैम्पूज आर शैम्पू इट्स समथिंग विच वी यूज टू वॉश आवर हेयर। तो जितने भी दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बाल साफ करते हैं, बाल क्लीन करते हैं, वो शैम्पू है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर ब्रांड, अब जैसे मैं लिख देती हूँ सनसिल्क, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड। एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम है सनसिल्क। ऑल शैम्पूज आर नॉट सनसिल्क, लेकिन सारे शैम्पू को हम शैम्पू कहते हैं। तो शैम्पू इज अ कॉमन नेम गिवन टू अ लोशन विच इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग हेयर। इट्स अ क्लींजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग हेयर, बट सनसिल्क इज अ पर्टिकुलर ब्रांड, सो इट विल बी रिटन विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है। चलिए सोप की भी बात करें।
Okay, let's talk about soap also. All soaps are called soap. सारे सोप को तो आप सोप ही बोलते हो, बट अगर आपने कोई हमने मान लो नीम लिया है, नीम सोप नाम होता है ना नीम, तो इट्स अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड. या आपने लिखा लक्स, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप. ऑल सोप्स आर नॉट नीम सोप, ऑल सोप्स आर नॉट लक्स, लेकिन सारे सोप को हम सोप बोलते हैं. तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन और ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन. ठीक है. अगर आप पिज्जा बोलते हो, PIZZA, ऑल पिज्जाज आर कॉल्ड पिज्जा. सारे पिज्जा पिज्जा ही होते हैं, खाने की चीज है, हमने खाने की चीज को नाम दिया है. लेकिन जब हम कहते हैं डोमिनोज पिज्जा, तो ये एक पर्टिकुलर ब्रांड है पिज्जा का, उसकी बात हम कर रहे हैं. ठीक है. तो ये हो गया प्रॉपर नाउन. ओके. चलिए चॉकलेट की बात करें. ऑल चॉकलेट्स आर कॉल्ड चॉकलेट. जितने भी चॉकलेट हैं वो सब चॉकलेट ही कहलाते हैं, खाने की चीज है. लेकिन जब मैंने बोला डेयरी मिल्क, तो ये पर्टिकुलर ब्रांड हो गया, है ना. इट्स अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक चॉकलेट. ठीक है. तो इस तरह से जो कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन है, इसका डिफरेंस मेरे को लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया है. लेट्स डू वन एक्सरसाइज. इस पर बेसिक एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है. चलिए अब एक हम एक्सरसाइज कर लेते हैं विच इज बेस्ड ऑन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. चलिए आई विल राइट सम नेम्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ कॉमन नेम और प्रॉपर नेम. ये सिंपल से एक्सरसाइज करा देते हैं. IDENTI, identify if the following words are common noun or proper noun. ठीक है. आपको बताना है कि जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है या कि प्रॉपर नाउन है. मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखती हूँ. ठीक है. चलिए अभी कुछ नाम मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दे आर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. बीना. बीना इज अ name of a particular girl or lady. All girls can't be Beena, all ladies can't be Beena, so it is a proper noun. Chair. All chairs are called chair. It is a common noun. 5 stars. 5 stars is the name of a particular chocolate, so it is proper noun. Mother. All mothers are called mother, so it is a
कॉमन नाउन. एक्टर, ऑल एक्टर्स आर कॉल्ड एक्टर. कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो इट इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन. इंग्लिश, इट इज अ प्रॉपर नाउन. Why? Because it is the name of a particular language. Friday. Friday is the name of a particular day. So it is a proper noun. Children, जो भी कैपिटल से लिखा है उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है. अगर वो कैपिटल लेटर से लिखा है तो देयर आर 99.9% चांसेस कि वो प्रॉपर नाउन ही है, क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा रहता है. ठीक है. डॉग, कॉमन नाउन बिकॉज ऑल डॉग्स आर कॉल्ड डॉग. फिश, कॉमन नाउन बिकॉज ऑल फिश आर कॉल्ड फिश. संतूर, संतूर इज नेम ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप. ऐसे संतूर एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है. ऑल संतूर्स आर कॉल्ड संतूर. जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर मैंने इसीलिए आपको बताया कि कैपिटल से पहचानना है, क्योंकि ऐसे तो संतूर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है एंड ऑल जितने भी संतूर होंगे वो उनको हम संतूर ही कहेंगे. लेकिन यहाँ पे मैंने ये कैपिटल में लिखा है, इट मीन्स इट्स द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड. ये किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है. एप्पल, ये फ्रूट वाला एप्पल नहीं है क्योंकि ये कैपिटल से लिखा हुआ है. एप्पल तो सारे एप्पल एप्पल है, खाने वाले जो एप्पल होते हैं, बट दिस इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड कॉल एप्पल. ये ब्रांड का नाम है एप्पल, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है. सेम सोने, सोने एज अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड, या हम अगर किसी पर्टिकुलर लेडी का भी नाम रख सकते हैं तो ये एक पर्टिकुलर नाम है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है. बुक, ऑल बुक्स आर कॉल्ड बुक, सो इट इज अ कॉमन नेम. In this way, you can identify whether a word is a proper noun or capital noun. Children, we will do some more exercises now related to proper noun and common noun, but not in this video. In the next video, we will do few more exercises on common noun and proper noun. एक्सरसाइज करेंगे और मैं आपके साथ कुछ कलेक्टिव नाउन भी डिस्कस करूंगी, बिकॉज इट इज ऑल्सो देयर इन योर कोर्स, कलेक्टिव नाउन. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, we'll meet in the next video now. Thank you.